Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, my name is Idal Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number 1 is going on, right? We already completed 3 sessions of chapter number 1. In today's session number 4, I am going to cover the topic about aquatic plants. We already learned about terrestrial plants, right? In today's session, I am going to explain you all the things about aquatic plants. Aquatic plants normally are found in 3 types: floating plants, fixed plant and underwater plant, right? But before I start explanation about today's session, let me revise all the things about last session. What I explained you in last session? I explained you about adaptation, then about habitat, and then about all the things about terrestrial plants. कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मोस्टली ग्रो होते हैं. क्लियर? नाउ एडेप्टेशन इज अ चेंज इन द बॉडी और बिहेवियर ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर प्लेस. एडेप्टेशन एक ऐसी चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसमें से कोई बिहेवियर और कोई भी चीज को चेंज करके उसी प्लेस पर सर्वाइव इजीली करवाता है. Clear? Now, what is the meaning of habitat? सब लोग बोल रहे हो अपने आंसर्स? नहीं? Yes, then it is very good. The natural home of any plant or any animal is called its habitat. कि अगर कोई भी नेचुरल प्लेस है जहाँ पे वो नेचुरली रह रहे हैं तो उस एनिमल और उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? उसकी हैबिटेट. क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नाउ व्हाट इज एक्वेटिक प्लांट्स? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं और ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन दीज टाइप्स ऑफ प्लेसेस: डेजर्ट्स, hilly regions, then after marshy area, then after plain, then after grasslands, then after coastal regions, and then after forest. So these type of things are not terrestrial plants are found in these type of areas, right? Clear, kids? Now aquatic plants. Let's start our today's topic about aquatic plants. You must have seen plants growing in ponds or lakes. Normally हम ऐसे plants देखते हैं जो ponds के ऊपर grow होते हैं और lakes में grow होते हैं. देखते हैं कि नहीं देखते? लोटस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट? लोटस होता है इतना क्यूट होता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. वो पॉन्ड के ऊपर जब ग्रो हुआ होता है तो बहुत मजा आता है. जो पॉन्ड की आजू बाजू में थोड़ा सा डर्टी एरिया होता है वो भी हमें लोटस की वजह से इतना प्रिटी दिखने लगता है, राइट? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स. आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, एनीवेयर. You are supposed to know plants which grow in water. They are called hydrophytes. Repeat, kids. क्या बोलेंगे हम उसको? Yes, hydrophytes. Clear? और we can use it as a aquatic plants also कि हम उसको हाइड्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं और उसको हम aquatic plants के नेम से भी उसको बोल सकते हैं. क्लियर? There are 3 types of aquatic plants. There are total 3 types of aquatic plants. One is floating plant, another one is fixed plants, and another one is underwater plants. So these are all the 3 types of plants which are found in water, right? Number 1, floating plant. The name floating already shows the word meaning. कि उस word का meaning already float मतलब
ऐसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, राइट? सो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर. फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के ऊपर इजीली फ्रीली फ्लोट करते हैं, राइट? These plants can float with the flow of water as they do not have roots. Floating plants do not have a roots. Floating plants के पास roots नहीं होते, तो water का flow जहाँ जहाँ जाता है वो उसके साथ float करके वहाँ पे easily एक जगह से दूसरी जगह easily जा सकते हैं. अगर इसके पास roots होते हैं तो वो float होते, बट वो इजीली उसकी मूवमेंट पॉसिबल होती नहीं. क्लियर? सो फ्लोटिंग रूट्स डू नॉट हैव ए रूट्स, सो दे कैन फ्लोट हियर एंड देयर विद द फ्लो ऑफ वाटर. कि वो वाटर के फ्लो के साथ कहीं पे भी मूवमेंट करते हैं. वाटर hyacinth and water lettuce are some examples of plants. Water lettuce भी होता है. It is a kind of a pistia. Pistia जैसा होता है. और water hyacinth. These are the examples of floating plants. I think यहाँ पे आपको image दिख रही है. There are so many and lots of floating plants are there, right? Here I have shown only few, but from that you easily getting to know कि floating plants have no roots. They can float here and there with the flow of water, right? Clear? Floating plants have spongy bodies that are filled with air. So silly thing, right? कि अगर floating plant की body spongy है, तभी वो easily air से fill होंगे और तभी वो easily float कर पाएंगे, right? तो heavy body के flowers होंगे, वो तो पानी के अंदर चले जाएंगे, उसकी body float कर पाएगी नहीं. This makes them light and helps them to float on water. उसकी light body helps them to float on a water and it feels like so light. इसीलिए वो easily float करते हैं. Duckweed is another example of floating plant. Their floating leaves have chlorophyll only on the top of their surface. Chlorophyll is a basic thing which is found in every plant. ये एक बेसिक थिंग है जो सब प्लांट्स में फाउंड मतलब होता ही है, बट इसी वाटर प्लांट्स में भी है, सॉरी फ्लोटिंग प्लांट्स में भी होता है, बट उसकी अपर बॉडी में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. उसी अपर बॉडी में जो प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होती है. ठीक है? सो chlorophyll only found on the top surface of that plant. Clear? It's chlorophyll. Clear, kids? Sometimes these kind of words make me feel I don't know, but please pronunciate it clear. It's chlorophyll. Done? I hope so you understand about floating plants. Clear? Now second one, fixed plant. Kids, fixed plant. Fix किया हुआ plant. This word only shows the things about plant. ये word ही plant को show करता है, fixed वाले plants, right? These plants have roots that are fixed to the mud at the bottom of the ponds. ये जो होता है fixed plants के roots होते floating के नहीं थे, तो वो float करते थे और movement भी होती. But fixed plants have a roots that are fixed to the mud at the bottom of the pond. कि pond के bottom में उसके roots एकदम से उसके साथ attach होते हैं, right? They have adapted so that they can float, get enough air and sunlight to make food and prevent damage by flowing water. इसकी एक ऐसी एडेप्टेशन है कि उसके रूट्स तो मड में ही होते हैं, बट स्टिल दे इजीली कैन फ्लोट, वो इजीली फ्लोट करते हैं. क्लोरोफिल इज आल्सो प्रेजेंट, तो उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो भी अच्छी तरह से हो जाती है, राइट? अगर उसको इनफ एयर, सनलाइट और ये सब कुछ मिलता है
राइट। तो उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपर होती है और कोई भी फ्लावर में डैमेज भी नहीं होता है, राइट। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर लिली, एज आई टोल्ड यू, लिली तो सबको पसंद आता है, लिली, लोटस, ये तो हम सबको पता है, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। उसको आप कभी भी कहीं पे भी जाना तो उसको देखना, दूर से ही ऑब्जर्व करना, उसके पॉन्ड के नजदीक नहीं जाना है, बिकॉज उस एरिया के आजू बाजू में अलगे होती है जहाँ से आप स्लीप हो सकते हो। तो कभी कभी देखने के लिए पानी के नजदीक नहीं जाना है, दूर से अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो। ओके। Fixed aquatic plants have long and hollow stems with large air spaces. Okay, हम लोग नॉर्मली जो होते हैं वो कोकोनट होते हैं, वो का स्ट्रॉ से पीते हैं, राइट। स्ट्रॉ क्या होते हैं, बीच में होल होता है कि नहीं होता है। तो ये जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं ना, ये जो प्लांट्स की जो स्टेम होती है ना, वो बहुत ही होलो टाइप की होती है, बीच में से एक स्पेस होती है। क्या होती है, स्पेस होती है। जैसे मैंने बोला ना, वो हम स्ट्रॉ से पीते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी स्टेम होती है। कैसी होती है किड्स, स्ट्रॉ जैसी स्टेम होती है। These helps the plants to stay afloat. वो एक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्या करता है किड्स, वो प्लांट्स को फ्लो करने में हेल्प करता है। Their soft and flexible stems bend with the flow of water. किड्स, इनके स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बट ये जो स्ट्रॉ उसमें बीच में होल होते हैं और स्टेम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और इतनी सॉफ्ट होती है कि पानी के फ्लो के आजू बाजू फ्लो होता है, मूवमेंट होती है पानी की, तो इजीली बैंड हो जाती है, सीधी हो जाती है, बैंड हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो ये मूवमेंट जो होती है, जस्ट इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेम की, उसकी जो स्टेम है अच्छी सॉफ्ट वाली, फ्लेक्सिबल वाली, उसी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल है और तभी वो वाटर प्लांट होता है और उसको फिक्स्ड वाटर प्लांट हम बोलते हैं, राइट। This prevents them from getting damaged by strong water currents. As we know कि पानी है तो वहाँ पे वाटर करंट्स भी होंगे, वेव्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो वाटर करंट्स से बचने के लिए उसके पास क्या है, उसके पास एकदम फ्लेक्सिबल और स्पॉन्जी स्टेम है, जिसके थ्रू वो वाटर करंट्स ही उसको डैमेज कर पाते नहीं है। क्लियर? Their flat and broad leaves help these plants to get sufficient air and sunlight. उसके कोई भी फिक्स्ड प्लांट होता है, उसके जो लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, उस वजह से उसको इजीली सफिशिएंट एयर और सनलाइट मिलती है और इजीली वो ग्रो होते रहते हैं, राइट। The waxy coating on their leaves prevents them from rotting. उसकी जो waxy coating होती है उससे वो खराब होते नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली पानी में रहती तो वो खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती, बट उसके लीव्स में वैक्सी कोटिंग होती है, वो बहुत एकदम, तो उसके अंदर पानी में रहते हैं बट फिर भी उसको कोई असर होता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैक्सी कोटिंग। अगर हम रेन में जा रहे हैं तो हम बाहर जाएंगे विदाउट रेन कोट तो हम गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, राइट। पर इफ वी आर वेयरिंग रेन कोट एंड देन वी आर गोइंग आउटसाइड एंड इट्स रेनिंग, तो हम गीले होंगे नहीं, बिकॉज हमारे ऊपर एक कवरिंग आ गई है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से वो वाटर प्लांट है तो उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग, एक ऐसा कवर है जिसको पानी में कॉन्स्टेंटली रहता है, फिर भी वो खराब होता नहीं है। डन? Unlike most green plants, fixed aquatic plants have stomata present on the upper surface of the leaves. Such adaptive feature helps these plants to perform gaseous exchange from their surroundings. Normally क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कि वो ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, बट वो एक लीफ जो होता है वो बैक साइड में होता है, राइट। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, लीफ के बैक साइड में होता है, तो वो इजीली ब्रीदिंग कर सकते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। बट ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा अपर सरफेस में ही
इजीली अपने सराउंडिंग के आजू बाजू में उसने अपने आप को एडप्ट भी कर लिया और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है अपने आप में फूड प्रिपेयर करने की वो भी कंटिन्यू हो जाती है। और बट नेचुरली इट्स लीव्स इज ग्रीन कलर, सो क्लोरोफिल इज आल्सो प्रेजेंट है। तो एक एडेप्टेशन उसने क्या एडप्ट की कि पीछे की बजाय उसके आगे में स्टोमेटा है। क्लियर? Let us so here I explained you about fixed plants. Now today's last topic about underwater plants. Now kids, underwater plants, that word itself shows कि underwater मतलब कि पानी के अंदर वाले plants, floating मतलब float करने वाले plants, fixed मतलब they are also floating but with having fixed roots at the bottom of the mud. Clear? So now underwater मतलब अंदर वाले plants. Some plants remain completely beneath the surface of water. They are also called submerged plants. They have adapted to breathe underwater. ऐसे प्लांट्स जो बिल्कुल पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं और उसने अपने आप को उसी प्लेस पर हैबिचुएट कर दिया है कि वो इजीली उसी प्लेस पर सरवाइव होते रहेंगे, उसी प्लेस से वो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, राइट? तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? अंडर वाटर प्लांट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स. The another name of underwater plant is submerged plants. Underwater plants का दूसरा नेम क्या है? Submerged plants, right? They have adapted to breathe underwater. उन्होंने अपने आप को उस तरह से एडप्ट किया है कि वो अंडर वाटर भी वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और इजीली वो ग्रो हो सकते हैं. क्लियर? Hydrilla and topgrass are underwater plants. There are so many different types of underwater plants are there, but hydrilla and topgrass are the best example of underwater plants. Kids, कभी-कभी आप लोगों ने मूवीज में देखा अंडरवाटर डाइविंग करते तब आप लोगों ने if you have you any time observed कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट कलरफुल, किसी में कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर लीव्स है तो लीव्स के शेप अलग है, कोई टॉल है कोई शॉर्ट है, राइट? अगर आप कार्टून्स भी देखते हो कभी कभी उसमें भी दिखाते हैं. इफ यू आर वाचिंग डिस्कवरी चैनल तो उसमें भी दिखाते हैं. एंड इट इज बेस्ट टू वॉच डिस्कवरी चैनल टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स मोर. क्लियर? देयर रूट्स फिक्स देम टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. उसके जो रूट्स होते हैं वो पॉन्ड के एकदम बॉटम से वो एकदम फिक्स हुए रूट्स होते हैं. दे हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम्स एंड फाइनली डिसेक्टेड लीव्स दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस ऑफ वाटर करंट्स. बट नेचुरली अंडर वाटर है तो अंडर वाटर में कितना करंट होता होगा, तो बट उसकी एडेप्टेशन क्या है कि वो एकदम रूट से कनेक्टेड रहते हैं तो एकदम से वो फिक्स टाइप के हुए होते हैं. मतलब जो जिसकी जो स्टेम लंबी होती है उसको प्रॉब्लम आ सकती है बट वो डायरेक्टली एकदम से फिक्स्ड हुए होते हैं. इस वजह से उसको वाटर करंट्स की भी इफेक्ट कम से कम होती है. क्लियर? Hydrilla has tiny leaves while topgrass have narrow ribbon-like leaves which bend in the flowing water. उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स की लीव्स की कि वो इजीली वाटर करंट आता है वो बेंड हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट चेंज हो जाती है, फिर बेंड होके सीधा हो जाता है, सीधे से बेंड हो जाता है. तो एक वाटर करंट होता है वो तो बट नेचुरल स्ट्रॉन्ग ही होगा तो वो फिर भी वो प्लांट्स है वो टूटते नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. अगर कोई प्लांट हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करेंगे हम उसको 2 से 4 बार ऐसे करेंगे ना तो उसकी स्टेम टूट जाएगी, बट इसकी स्टेम टूटती नहीं है. तो उसने अपने आप को उस एडेप्टेशन में एडेप्ट किया कि वो पानी में सेफ इजीली किस तरह से रह सके तो कि वो अपनी फ्लेक्सिबल स्टेम की वजह से वो इजीली सेफली पानी के अंदर रह सकता है.
They breathe through small air spaces present in their stem. The leaves of underwater plants do not have stomata. अंडरवाटर प्लांट्स के अंदर के जो लीव्स होते हैं ना, उसमें स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं होता है, बट स्टिल उसमें एयर होल्स जैसा फीचर होता है जिसके थ्रू वो इजीली एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है. क्लियर? These plants are adapted to absorb carbon dioxide and oxygen from the water. वो इजीली अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर चुका है कि वो पानी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर ऑक्सीजन कोई भी चीज होती है उसको वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी प्लांट को ये जो कोई भी फूड प्रोसेस वाली प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होती है. I hope so you understand all these topics about aquatic plants. समझ में आ गई है? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. फटाफट से फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में फ्लोट करते हैं, उसके पास अपने रूट्स होते नहीं है, वो इजीली वाटर के फ्लो के थ्रू इधर उधर उसकी मूवमेंट होती है. क्लियर? देन आफ्टर फिक्स्ड प्लांट्स जो फ्लोट तो करते हैं बट उसके रूट्स फिक्स्ड होते हैं और एकदम मर्ड होता है, वहाँ पे बॉटम तक उसके रूट्स एकदम वहाँ पे होते हैं, राइट? तो वो इजीली फ्लोट करता है बट उसकी मूवमेंट में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है. उसकी स्टेम जो होती है वो बहुत ही होलो और बीच में हॉल वाली होती है, फ्लेक्सिबली होती है, तो मूवमेंट भी पॉसिबल है, वो टूटता भी नहीं है. उसकी वैक्सी कोटिंग होती है जिससे वो कॉन्स्टेंटली पानी में रहता है तो वो खराब भी नहीं होता है. क्लियर? देन आफ्टर अंडरवाटर प्लांट, अंडरवाटर प्लांट्स ने अपने आपको इस तरह से एडेप्ट किया है कि वहाँ पे स्टोमेटा भी नहीं है, फिर भी दे आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस वजह से वहाँ पे वाटर करंट्स आते तो भी वो टूटते नहीं है. So I hope so you understand about aquatic plants very clearly. Here I completed all the things about this chapter, right? Kids, I have shared a PDF with you of my chapter and worksheet. It is a little bit lengthy, but it is too much easy. Try to give it answers by your own self. If you don't know, revise my video. Then again I can tell you, if you still don't know, read the book again and then after do it with your own self and do it with good handwriting. Okay kids? Chalo. So till next session kids. Bye.